Hello students, today I am going to explain you of your EVS book chapter number 2 Human Body, Organs and Systems of class 3. Okay students, in this chapter we are going to understand the following topics which has given in the form of question here. Like first question is, how do we see, feel, hear, taste, smell, etc. The next question, how many bones do you think we have? And what happens to the food after we have eaten it? So, let's start the chapter. Our body is a wonderful machine. Students, हमारी body क्या है एक तरह से? एक machine ही है. Okay? It's a wonderful machine. In fact, it works in a more systematic manner than any other machine. और बाकी मशीन की अगर हम लोग कंपैरिजन में देखें तो हमारी जो बॉडी है वो बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में काम करती है, एकदम बिल्कुल अप टू डेट. वी हैव मेनी ऑर्गन्स इन आवर बॉडी like the eyes, nose, lips, neck, stomach, lungs, heart, kidneys, etc. All these organs have their individual functions. हमारी बॉडी में बच्चों बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे हम लोग इस पिक्चर में देख रहे हैं तो हेयर, हेड, आई, ईयर, नोज, लिप्स, नेक, आर्म, फिंगर, हैंड, चेस्ट, स्टमक, नी, लेग, एंकल, टो. ओके, these are the external parts of our body, but some internal parts also it's there which we cannot see, like heart, brain, kidneys. Okay, so every organs have their individual function. हर एक organ का हमारी body में अलग अलग काम है. Our body is made up of different types of cell. हमारी बॉडी किससे बनी है बच्चों? हमारी बॉडी सेल्स से मिलकर बनी हुई है. ओके, सेल्स से. सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी. जैसे कि बच्चों आप देखते हो कि आपका घर किससे बना हुआ है? ब्रिक्स से मिलकर बने हुए हैं. वैसे ही जो हमारी बॉडी है उसमें बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम कौन करता है? सेल्स करते हैं हमारे. A cell is the smallest living part of our body. जो हमारी सेल है वो क्या है? हमारी बॉडी का स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट है. अंडरस्टैंड बच्चों? Many cells work together in a similar function. बहुत सारे जो सेल्स होते हैं वो मिलकर एक जैसा काम करते हैं. They are doing the similar function. A group of similar cells form a tissue. Similar cells जो हैं, है ना, उनका ग्रुप मिलकर एक टिश्यू फॉर्म करता है. क्या बनाता है? टिश्यू. And many tissues join together to form an organ. और many tissues मिलकर क्या बनाते हैं? एक organ बनाते हैं. Organs may be internal or external. ऑर्गन्स में बी इंटरनल और एक्सटर्नल. जैसे कि मैंने आप लोग को अभी समझाया था कि हमारे ऑर्गन्स जो हैं वो इंटरनल भी हैं और एक्सटर्नल भी हैं. ईच ऑर्गन इज स्पेशलाइज्ड टू डू वन और मोर फंक्शंस. हमारे हर एक ऑर्गन का बहुत ही स्पेशल फंक्शन होता है. वो ऐसे बने हैं कि वो अलग अलग काम कर सकें और दे कैन डू वन और मोर functions also. एक से ज़्यादा काम भी करते हैं. See, a number of organs work together to form an organ system. अब बहुत सारे organs मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों? Organ system बनाते हैं. There are number of organ system in our body. These systems allow our body to work smoothly. और ये organ system मिलकर क्या करते हैं? हमारी body को उसका काम करने में आसानी देते हैं. तो अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा बच्चों, क्या पढ़ा कि हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है? सेल्स से. जो हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट है हमारी बॉडी का, वो क्या है? सेल्स. अब सेल्स एक जैसे
A similar group of similar cells form a tissue. और similar cells मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं. और many tissues join together and form an organ. Many tissues एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं. और a number of organs work together to form an organ system. हमारे बहुत सारे ऑर्गन एक सिस्टम में काम करते हैं जो कि एक ऑर्गन सिस्टम कहलाता है. और ये ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनता है? लिविंग बीइंग्स, जो कि हम हैं, हमारी बॉडी है. ओके, हम क्या है? लिविंग बीइंग है ना. वी कैन वॉक, वी कैन टॉक, और वी कैन ईट, एंड वी कैन डू रिप्रोडक्शन ऑल्सो. So that's why we are called the living beings. Now, sense organs. Students, already you have read about the sense organs in your previous classes also, and you know very well about the sense organs. We are able to feel the things around us, sense them and see them. The special organs which help us to feel, sense or see the world around us are called the sense organs. We have 5 major sense organs, as you know already. These are the eyes, ears, nose, tongue and the skin. As you can see here, eyes help us to see the world around us. Ears help us to hear the different sound. The nose helps us to smell. The tongue helps us to differentiate the taste of sweet, sour, salty and bitter things. There are taste buds on the tongue which help us to taste. Students, if you can see your tongue in the mirror, you can see that small holes, buds, small bird-like structure is present in our tongue, which help us to taste. Okay, which help us to taste which is sweet, sour, salty and bitter. The skin helps us with the sense of touch. We can find out if an object feels soft, rough, hard, cold, hot or smooth with our sense of touch. कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, वो हार्ड है, सॉफ्ट है, रफ है, कोल्ड है, स्मूथ है, कैसी है, ये हमको कैसे समझ में आता है? द सेंस ऑफ टच, जो हमारी स्किन से हम लोग टच करते हैं, उस फीलिंग से ही हम लोग को समझ में आता है. सो having learnt about the sense organs, can you now tell whether the sense organs are internal or external? अब आप बच्चों, आप लोगों ने सेंस ऑर्गन्स में बारे में पूरा पढ़ा है, तो आप बता सकते हो क्या कि ये इंटरनल है कि ये एक्सटर्नल है? ओके, यू नो दैट अ नंबर ऑफ ऑर्गन्स टुगेदर फॉर्म अ सिस्टम. हमने अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि जो नंबर ऑफ ऑर्गन्स एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. सो वी हैव अ नंबर ऑफ ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी विच वी विल लर्न इंडिविजुअली. हमारे बॉडी में भी बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं जो कि इंडिविजुअली उनका अलग अलग फंक्शन है. तो हम आगे अभी उसके बारे में अलग अलग बिल्कुल पढ़ने वाले हैं ना, विच वी आर लर्न इंडिविजुअली. द फर्स्ट ऑर्गन सिस्टम इज स्केलेटल सिस्टम. जो फर्स्ट ऑर्गन सिस्टम है हमारी बॉडी का, वो क्या है? स्केलेटल सिस्टम है. कैन यू गेस द नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी? देयर आर 206 बोन्स इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में टोटल बोन्स कितनी है? 206. The bones of our body are joined together in a framework called the skeleton. You can see this picture. इसमें जो ये हमारी बॉडी, सिर्फ हमारे बोन्स दिख रहे हैं बच्चों. ओके, हमारी बॉडी पूरी नहीं दिख रही है, ये हमारा सिर्फ स्केलेटल सिस्टम है. तो इसमें आप देख रहे हो कि हमारी जो बोन्स है वो आपस में एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए हैं कि ये एक फ्रेमवर्क बन गया. हमारी बॉडी का क्या बन गया है? यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन गया है जिसे हम क्या बोलते हैं? स्केलेटन. क्या बोलते हैं? स्केलेटन बोलते हैं. ठीक है, और ये सिस्टम क्या बोलते हैं? इसे स्केलेटल सिस्टम. What are the functions of the skeletal system? हमारे skeletal system के क्या फंक्शन है, क्या काम है? The skeleton gives a fixed shape to our body. ये जो skeleton है, ये हमारी बॉडी को क्या देता है? एक फिक्स्ड शेप देता है. The skeleton supports the body without which we cannot
even stand straight. ये बेटा जो एक फ्रेमवर्क है ये हमें स्ट्रेट रहने में हेल्प करता है, स्टैंड करने में और मूव करने में. दैट इज व्हाई इट इज वेरी नेसेसरी. द स्केलेटन ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट ऑर्गन्स इनसाइड अवर बॉडी. अब ये जो स्केलेटन सिस्टम है ये हमारी इंटरनल जो डेलिकेट ऑर्गन्स है हमारी बॉडी के उसको भी प्रोटेक्ट करता है. लाइक सी स्कल, ये स्कल है, इसके अंदर क्या होता है, हमारा ब्रेन होता है. ठीक है, तो वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. ये जो रिब केस है, रिब केस किसको प्रोटेक्ट करता है, हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है. और ये जो हमारी हिप्स जॉइंट है इट विल प्रोटेक्ट आवर, इट इज प्रोटेक्टिंग आवर किडनीज. ओके, सो ये हमारी जो ये स्केलेटन है ये हमारे इंटरनल पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स को भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है. देयर आर मैनी जॉइंट्स इन द स्केलेटन सिस्टम. हमारी स्केलेटल सिस्टम में बहुत सारे जॉइंट्स भी हैं. अब जॉइंट्स किसको बोलते हैं, अ पॉइंट वेयर टू और मोर बोन्स मीट इज कॉल्ड अ जॉइंट. एक ऐसा पॉइंट जहां पर टू और मोर बोन्स आपस में मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड अ जॉइंट. These joints help us to move, bend, run, etc. Like see, two pictures have shown here. First is knee joint. आप लोग अपने घुटने में देखे हो कि जब आप घुटने मोड़ते हो आगे कर, तो आप देखते हो कि आपकी नीज में क्या है बच्चों, जॉइंट है ना, जो हमको बेंड करने में और स्ट्रेट खड़े होने में हेल्प करते हैं, मूव करने में, चलने में, रन करने में हमारी हेल्प करते हैं. वैसे ही हमारी एल्बो में भी, जब आप अपने हैंड को देखोगे तो आप देखोगे अपने एल्बो के पास भी, आप जब अपने एल्बो को बेंड करते हो, फोल्ड करते हो, स्ट्रेट करते हो, तो क्या देखते हो कि वहां पर भी क्या है, जॉइंट्स है हमारी. मतलब दो बोन्स आपस में क्या हुई है, वहां पर जुड़ी हुई है, तो एक जॉइंट प्रेजेंट है वहां पर. ओके, नो मोर में दिया हुआ है बच्चों, द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन एंड द बोन्स अराउंड द हिप्स प्रोटेक्ट द किडनीज. ऑलरेडी आई एक्सप्लेन्ड यू दिस लाइन. Slender circular pairs of bones called the ribs form a cage-like structure to protect the heart and the lungs. Okay. Now the second organ system is in our body is muscular system. अब हमारी बॉडी का हम लोग नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम पढ़ने वाले हैं जो कि है मस्कुलर सिस्टम. डिफरेंट मसल्स इन आवर बॉडी मेक अप द मस्कुलर सिस्टम. हमारी डिफरेंट मसल्स जो है हमारी बॉडी पर मिलकर क्या बनाते हैं, मस्कुलर सिस्टम बनाते हैं. द ह्यूमन बॉडी हैज मोर देन 600 मसल्स. हमारी जो ह्यूमन बॉडी है बच्चों उसमें क्या है, 600 से ज्यादा मसल्स हैं, प्रेजेंट है. सम ऑफ द मसल्स आर अटैच टू द बोन्स, और कुछ मसल्स हमारी बोन से भी अटैच है. अभी हम लोगों ने क्या देखा था बच्चों, हम लोगों ने अपना स्केलेटन सिस्टम देखा था जिसमें कि क्या सिर्फ हमें दिख रहे थे, सिर्फ बोन्स दिख रहे थे. अब हमारे बोन्स को किसने कवर कर दिया है, यहाँ पर हमारी मसल्स ने प्रेजेंट कर दिया है, कवर कर दिया है, जो कि हमारी बॉडी में मोर देन 600 मसल्स प्रेजेंट है. तो ये आप हम देख रहे हो कि हमारी बॉडी को क्या मिल गया है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मिल गया है, प्रॉपर फेस मिल गया है, जो कि हमारी मसल्स से मिला हुआ है. कुछ मसल्स हमारी बोन्स में भी अटैच होती हैं. हाउ डू द मसल्स हेल्प अस. हम ये मसल्स हमें किस तरह से हेल्प करती हैं, कैसे हेल्प करती हैं. द मसल्स एक्सटेंड और कॉन्ट्रैक्ट इन ऑर्डर टू हेल्प आवर बोन्स टू मूव. जो मसल्स है वो हमारी बॉडी से इस तरह से जुड़ी रहती है बच्चों, बोन्स से, जिससे कि हमारी बोन्स क्या हो सके, मूव कर सके, बेंड कर सके. द मसल्स हेल्प टू मूव वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी इंटरनली और एक्सटर्नली. हमारे इंटरनली और एक्सटर्नली जो बॉडी ऑर्गन्स है उसको मूव करने में भी हमारी मसल्स क्या करती हैं, हेल्प करती हैं. दे हेल्प अस टू डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क. ओके, the next organ system of our body is digestive system. What is digestive system? We need food to grow and work. All we know बच्चों की हमें क्या चाहिए, ग्रो करने के लिए और अपने वर्क करने के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए, जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है. फूड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिफरेंट डिजीजेस, और फूड ही हमें क्या, डिफरेंट डिजीजेस से भी प्रोटेक्ट करता है. वी ईट फूड व्हेन वी आर हंग्री. हम कब फूड ईट, व्हेन वी आर ईटिंग फूड व्हेन वी फील हंग्री. जब हमको भूख लगती है तब हम खाना खाते हैं. दिस फूड इज इन अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म एंड कैन नॉट बी यूज्ड बाय द बॉडी. और ये जो फूड होते हैं ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, है ना,
form and cannot be used by the body until it converts into simple form. और जब तक ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाते हैं तब तक ये हमारी बॉडी यूज नहीं कर सकती है. द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प अस टू डू दिस. हमारी बॉडी में क्या हेल्प करता है? इसे कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में चेंज करने के लिए फूड को क्या हेल्प करता है? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प करता है. The process of breakdown of food material by the organs of the digestive system into simple soluble form for the body to absorb and get energy called digestion. ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड जो है, फूड मटेरियल, वो ब्रेकडाउन होके किस में कन्वर्ट हो जाता है? सिंपल और सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. सिंपल मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में हमारा जो फूड है वो हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है. ठीक है, उसको मतलब मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाता है वो. और उसके बाद सॉल्यूबल मीन्स जो कि पानी में जैसे घुल जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूबल बोलते हैं. तो इसमें कौन हेल्प करते हैं? हमारे ऑर्गन्स हेल्प करते हैं, जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं. ओके, तो ये जो सिंपल और सॉल्यूबल फॉर्म में जो हमारा फूड मटेरियल कन्वर्ट होता है, इससे फिर क्या करती है हमारी बॉडी जो है, इसमें से एनर्जी और मिनरल्स को अब्सॉर्ब कर लेती है. और दिस होल प्रोसेस, ये जो होल प्रोसेस है, इसे बच्चों हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं. When we take in food, जब हम फूड लेते हैं मीन्स खाते हैं, ठीक है, the teeth chew it to form a fine paste. हमारे दांत जो है, हमारे teeth उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? एकदम फाइन पेस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, चबा चबा के. With the help of the juice in our mouth called saliva. From the mouth, the food goes through the food pipe into the stomach. अब जो फूड है वो हमारे माउथ से कहाँ चला जाता है? फूड पाइप के थ्रू स्टमक में पहुंच जाता है. डाइजेस्टिव जूसेस आर पोर्ड इनटू द स्टमक बाय इट्स वॉल्स एंड द फूड इज डाइजेस्टेड पार्टली हियर. अब डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो उसके वॉल से, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वहाँ से, स्टमक है, स्टमक के वॉल से डाइजेस्टिव जूसेस निकलने लगते हैं, जो कि इस फूड को क्या कर देते हैं? पार्टली वहाँ पर डाइजेस्ट कर देते हैं. मतलब आधा हमारा वहाँ पर फूड जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है. These juices mix the food and further make it into a finer paste. अब ये juices मिलकर हमारे फूड में उसको किस में बदल देते हैं? बिल्कुल फाइन पेस्ट में बदल देते हैं, फाइनर पेस्ट में. द लीवर एंड पैनक्रियाज ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन. हमारा लीवर और जो पैनक्रियाज है वो भी डाइजेशन में हेल्प करते हैं बाय पोरिंग देयर डाइजेस्टिव जूसेस टू मिक्स विद द फूड. और वो भी यहाँ पर क्या करते हैं? जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं, जिससे कि हमारा फूड जो है वो डाइजेस्ट हो जाए अच्छा से, वो इसलिए वहाँ पर डाइजेस्टिव फूड जूसेस जो है वो मिक्स करते हैं हमारे फूड. As you can see here, this is our digestive system. See, it's our mouth. माउथ से जो है हमारा फूड पाइप अटैच्ड है. अब माउथ हम जो फूड लेते हैं, ठीक है, वो हमारे टीथ से च्यू होकर क्या जाता है? हमारे फूड पाइप से डायरेक्ट एंटर कहाँ करता है? हमारे स्टमक में एंटर करता है. अब स्टमक में क्या होते हैं? डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, जिससे कि वो पार्टली यहाँ पर क्या होता है? डाइजेस्ट हो जाता है. उसके बाद हमारा लीवर और हमारे पैनक्रियाज भी उसमें डाइजेस्टिव जूसेस मिक्स करते हैं, ताकि जो हमारा फूड है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए. ये क्या है? हमारा फूड पाइप, ये स्टमक, ये है लीवर, ये लार्ज इंटेस्टाइन, और ये हमारा क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन. और उसके बाद ये फूड जो है ये हमारे अनस से होकर बाहर चला जाता है बच्चों, जो डाइजेस्टेड होता है, मतलब जो अनयूज्ड होता है. The food then goes into the small intestine. In the small intestine, the food is further digested into a soluble, simple form and is absorbed into the blood. अब जब हमारा फूड है बेटा, वो कहाँ पर जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाता है सॉल्युबल और सिंपल फॉर्म में, जिसको कि हमारा ब्लड जो है उसमें से अब्सॉर्ब कर लेता है, मिनरल्स को अब्सॉर्ब कर लेता है.
द अनडाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है एंड इज इजेक्टेड थ्रू आउट फ्रॉम द बॉडी एज फेसेस और स्टूल्स थ्रू द एनस। अब जो एनस से है, जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है, जो कि अनयूज्ड है, जो हमारी बॉडी में जिसका कोई काम नहीं है, और उस फूड को क्या करता है, हम उसे बाहर निकाल देते हैं एज अ फेसेस और स्टूल्स फ्रॉम द एनस। ओके, सो नो मोर में क्या दिया है बच्चों यहाँ पर, द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स ऑफ द वॉल्स ऑफ द ऑर्गन्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम इज नोन एज पेरिस्टलिस। This movement of the organ walls pushes the food and liquid down the digestive tract and also mixes the contents inside the organs. The next organ system of our body is respiratory system. Respiratory system means breathing is essential for living. ब्रीदिंग इज़ वेरी इंसेंशियल बच्चों। आप जैसे देखते हो कि आप हमेशा क्या करते हो, आप ब्रीदिंग करते रहते हो, आप सांस लेते रहते हो, है ना। तो ब्रीदिंग क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है जो हमारे जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम ब्रीथ नहीं करेंगे तो मतलब हम जीवित नहीं है, मतलब हम लोग जी नहीं। All the organs that help in breathing like the nose, the windpipe and the lungs form the respiratory system. अब हमारी ब्रीदिंग की प्रोसेस में जो वो ऑर्गन हेल्प करते हैं, जैसे कि हमारा नोज हुआ, हमारी विंड पाइप, हमारे लंग्स, दे आर फॉर्मिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। व्हेन वी ब्रीद इन एयर थ्रू आवर नोज, it passes through the windpipe and goes to the lungs. The lungs absorb oxygen from the air and send it to the blood, which carries it to all parts of the body. जब हम लोग ब्रीथ करते हैं बच्चों, तो हमारी नोज से क्या, हम लोग एयर जो होती है वो हमारी नोज से हमारी विंड पाइप के थ्रू कहाँ चली जाती है, हमारे लंग्स में चली जाती है ना। जो आपको पता है हम ब्रीदिंग में कौन सी गैस लेते हैं बच्चों, हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। तो ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है, हमारी लंग्स में चले जाती है। ओके, जो हमारे लंग्स हैं वो ऑक्सीजन को अब्जॉर्व कर लेते हैं एंड सेंड इट टू द ब्लड विच कैरीज इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ये जो हमारे लंग्स हैं ये हम उसको क्या करते हैं, उसको हमारी ब्लड में ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्ब करके ब्लड के थ्रू उसको पूरी हमारी बॉडी में पहुंचा देते हैं। ऑक्सीजन हेल्प्स इन डाइजेशन एंड रिलीजेस एनर्जी फ्रॉम फूड। ऑक्सीजन किसमें हेल्प करती है, हमारे डाइजेशन में हेल्प करती है, और जो क्या रिलीज करती है, एनर्जी रिलीज करती है हमारी बॉडी में फ्रॉम द फूड। व्हेन वी ब्रीथ आउट, the impure air containing carbon dioxide goes out through our nose। और उसके बाद जो लंग्स है ऑक्सीजन ऑब्जॉर्ब करने के बाद जो हमारी बॉडी में वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड है, इम्प्योर एयर है, उसको हम लोग अपनी नोज के थ्रू, नोस्ट्रिल्स के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। द होल प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग और टेकिंग इन of oxygen and exhaling or giving out carbon dioxide is called respiration। ये जो whole process है, ऑक्सीजन जिसमें बच्चों हम लोग इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। अंडरस्टैंड? एंड दिस इज आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। नो मोर, द लंग्स आर मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ एयर सैक्स कॉल्ड एल्वियोली। जो हमारे लंग्स हैं वो एक बहुत सारे नंबर ऑफ एयर सैक्स, सैक्स मीन्स लाइक सैक आप लोग ऑलरेडी जानते हो, बोरे के जैसे होते हैं जो, तो एयर सैक्स से मिलकर बने हुए हैं हमारे लंग्स में बहुत सारा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वियोली बोलते हैं। विच आर फिल्ड विथ अ नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स, जो कि पूरे ब्लड वेसल्स से मिलकर बने हुए हैं, भरे हुए हैं। टू अब्जॉर्ब मोर एंड मोर ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करने के लिए ये पूरा प्रोसेस एल्वियोली जो है वो काम करती है। अंडरस्टैंड? नाउ द नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम इज आवर सर्कुलेटरी सिस्टम। What is the circulatory system? The heart, the blood and the blood vessels form the circulatory system। हमारा हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स जो हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। अवर हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी।
आप लोग जब अपने हार्ट को टच करते होंगे बच्चों तो देखते होंगे क्या होता है, वो बार बार कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिर उसके बाद क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है, मतलब सिकुड़ता है और फिर खुलता हुआ। तो ये जो प्रोसेस है इसमें हार्ट हमारा क्या करता है, पंप करता है, ब्लड को पंप करता है, हमारी पूरी बॉडी में पंप करता है। स्मॉल पाइप लाइक स्ट्रक्चर दैट कैरी ब्लड थ्रू आउट द बॉडी आर कॉल्ड द ब्लड वेसल्स। और एक पाइप के जैसे स्ट्रक्चर होता है हमारे हार्ट में, जो कि क्या बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स बोलते हैं। और ब्लड वेसल्स से ही जो ब्लड है वो पूरी हमारी बॉडी में क्या होता है, सप्लाई होता है। See, these pipe-like structures are called the blood vessels. The pure blood from the heart to the body parts is carried by a type of blood vessels called the arteries. जो प्योर ब्लड है बच्चों वो हमारी हार्ट से पूरी बॉडी पार्ट्स में कैरी किया जाता है, मतलब ब्लड वेसल्स से, जिसे जो ब्लड वेसल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टरीज बोलते हैं। The impure blood from all parts of the body is carried to the heart by the veins for purification. अब जो impure blood होता है हमारी बॉडी में वो वापस कहाँ चला जाता है, हमारे हार्ट में चला जाता है थ्रू द वेन्स। वेन्स जो है उसको कैरी करके हमारे हार्ट में वापस पहुंचा देता है, जिससे कि वो क्या हो जाता है, वो ब्लड वापस प्यूरिफाई होता है। ओके, ब्लड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज़ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमारा ब्लड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का और उसके ये काम है। ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड फूड एंड ऑक्सीजन अक्रॉस द बॉडी। अब जो डाइजेस्टेड फूड था बच्चों, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमारा फूड डाइजेस्ट हुआ है, अब वो कैसे हेल्प करेगा, उसको किस तरह से हमारी पूरे बॉडी के मतलब पूरे ऑर्गन्स में कैसे पहुंचेगा, थ्रू टू द ब्लड वेजल्स। ठीक है, ब्लड जो है वो डाइजेस्टेड फूड और ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी तक पहुंचाता है। इट कलेक्ट्स इम्प्योर गैसेस एंड वेस्ट मटेरियल एंड कैरीज देम टू द ऑर्गन्स दैट हेल्प टू थ्रो देम आउट ऑफ द बॉडी। अब ब्लड ही जो है, ब्लड ही जो ऐसा पार्ट है हमारी बॉडी का जो इम्प्योर गैसेस और वेस्ट मटेरियल को फिर से कलेक्ट करके कहाँ तक पहुंचाता है, ऐसे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स में पहुंचाता है, जो कि उससे जहाँ से वो बॉडी से, तो ये वापस हमारी बॉडी से क्या होते हैं, वो बाहर चले जाते हैं, जो कि वेस्ट मटेरियल होता है। ओके, द नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी इज नर्वस सिस्टम। द ब्रेन, द नर्व्स एंड द स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म द नर्वस सिस्टम। हमारा ब्रेन, हमारी स्पाइनल कॉर्ड और ये जो नर्व्स हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों, हमारा नर्वस सिस्टम बनाते हैं। द ब्रेन इज कॉल्ड द मास्टर ऑर्गन बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल आवर एक्शंस। जो हमारा ब्रेन है वो हमारी बॉडी का मास्टर ऑर्गन कहलाता है। क्यों मास्टर ऑर्गन बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी पूरी बॉडी के जो भी एक्शंस होते हैं, जो काम होते हैं, उसको पूरा कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स ऑल आवर एक्शंस। Messages to the brain and from the brain to all body parts are carried by the nerves. Just as electric wires carry current, nerves carry messages. जैसे कि इलेक्ट्रिक वायर्स आप लोग देखते हो बच्चों अपने घरों पे, उससे क्या वो क्या कैरी करते हैं, करंट कैरी करते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी हमारे पूरे घर में पहुंचती है उन वायर्स से। वैसे ही जो हमारे नर्व्स हैं, हमारी बॉडी में जो नर्व्स प्रेजेंट है वो मैसेजेस हमारे कैरी करते हैं। सो नर्व्स आर लाइक करंट कैरिंग वायर्स, इसीलिए नर्व्स को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट कैरिंग वायर्स भी बोलते हैं। ओके, द नेक्स्ट organ system of our body is excretory system. Excretory system means बच्चों a lot of waste material is formed in our body because of our daily activities. हमारी daily activities के कारण हमारी body में बहुत सारा क्या हो जाता है, waste material भी form हो जाता है। If the waste is not removed from the body, it causes disease. अगर ये waste हमारी body से remove नहीं किया गया तो क्या हो जाएगा, ये diseases के कारण बनेगा। हमारी body में जो diseases होती हैं उसका ये कारण बन सकता है। द एक्सक्रिएटरी सिस्टम परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एक्सक्रिएशन और रिमूवल ऑफ वेस्ट। जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम होता है हमारी बॉडी का वो क्या परफॉर्म करता है, ये सारे वेस्ट मटेरियल को ही एक्सक्रिएट करने का, एक्सक्रिएशन करने का और रिमूव करने का, रिमूवल ऑफ वेस्ट, ये काम करता है। A pair of kidneys mainly are the organs of the excretory. जो हमारी किडनीज होती है बच्चों वो मेन हमारी excretory organ होती है।
एक्सक्रिएटरी सिस्टम की मेन ऑर्गन्स होती है। द लंग्स एंड द स्किन टू आर पार्ट्स ऑफ द एक्सक्रिएटरी सिस्टम। हमारे लंग्स और हमारा जो स्किन है वो भी एक्सक्रिएटरी सिस्टम का ही एक पार्ट होता है। अवर लंग्स थ्रो आउट कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द नोज। हमारे लंग्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं, हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं, है ना। और द स्किन रिमूव्स वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट एंड स्वेट। और हमारी स्किन जो है वो हमारी बॉडी से क्या रिमूव करती है, जो स्वेट है ना, सॉल्ट के फॉर्म ऑफ सॉल्ट एंड स्वेट हमारा वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी से रिमूव करती है। दिस इज अवर एक्सक्रिएटरी सिस्टम। सी, यूरेटर, यूरिनल, ब्लैडर, ओके। और ये क्या है, हमारी किडनी है ना। ये पूरा जो ऑर्गन्स हैं ये मिलके क्या बनाते हैं, एक्सक्रिएटरी सिस्टम बनाते हैं। द किडनीज आर अ पेयर ऑफ बीन शेप्ड ऑर्गन्स विच फिल्टर एंड रिमूव लिक्विड वेस्ट फ्रॉम द ब्लड एंड प्रोसेस इट टू फॉर्म यूरिन। किडनीज जो होती हैं वो बीन शेप्ड होती हैं बच्चों। बीन आपने देखा है, बीन का जो एक सीड होता है उसकी शेप का होता है हमारा किडनी, और ये कि पेयर में प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में, दो होती हैं, मतलब एक पेयर होता है। और ये क्या करती हैं, हमारी बॉडी में लिक्विड प्यूरिफायर, जो लिक्विड है उसको फिल्टर करती हैं, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करती हैं हमारी बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, जो कि यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है, हमारी ब्लड को प्योरीफाई करती है। दिस यूरिन इज कलेक्टेड इन द यूरिनरी ब्लैडर एंड देन पास्ड आउट ऑफ द बॉडी। ये जो यूरिन है वो हमारी यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होकर हमारी बॉडी से पास आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। अंडरस्टैंड? तो दिस इज द एक्सक्रिएटरी सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। द लास्ट ऑर्गन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी इज रिप्रोडक्शन। वैसे तो हमारी बॉडी में और भी ऑर्गन सिस्टम्स है, पर अभी इस चैप्टर में हम लोग रिप्रोडक्शन तक ही पढ़ रहे हैं बच्चों। द एबिलिटी टू प्रोड्यूस मोर ऑफ वंस ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। दैट एबिलिटी जो हमारी बॉडी में होती है बच्चों, जो ह्यूमंस में है, जो लिविंग बींग्स में है, वो क्या है कि दे कैन प्रोड्यूस देयर मोर ऑफ देयर ओन्स वन काइंड, है ना। तो ये जो इस प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। द ऑर्गन्स दैट हेल्प इन प्रोड्यूसिंग वंस ऑफस्प्रिंग और बेबीज फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो ऑर्गन्स इसमें हेल्प करते हैं, मतलब अपने जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, मीन्स अपने बेबीज को बर्न करने में, मीन्स जन्म लेने में जो बेबीज को हेल्प करते हैं, दैट इज कॉल्ड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द ऑर्गन्स ऑफ दिस सिस्टम आर डिफरेंट इन मैन एंड वुमेन। ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये बिल्कुल डिफरेंट होते हैं मैन और वुमेन में। मोर अबाउट दिस सिस्टम विल बी एक्सप्लेन्ड इन द हायर क्लासेस। इसके बारे में बच्चों और ज़्यादा आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है ना। जो भी आपको डाउट्स है इस चैप्टर, सो दिस चैप्टर इज एंडेड हियर इन रिप्रोडक्शन। जो भी आपको डाउट्स है इस चैप्टर में बच्चों, ऑलरेडी मैं ऑनलाइन क्लास में आपको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ ये चैप्टर, तो आप मुझसे ऑनलाइन क्लास में मुझसे जो भी डाउट्स हैं उसको पूछ सकते हो, ठीक है। ये एक्टिविटी यहाँ पर दी हुई है, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसको मैंने फिल कर लिया है ऑलरेडी। नेम द फॉलोइंग, आप भी इसको कंप्लीट कर लेंगे, ओके। देन वॉट एवर द डाउट्स आर देयर यू हैव टू आस्क मी इन माई ऑनलाइन क्लासेस, ओके। ऑनलाइन सेशन में हम लोग क्लियर कर लेंगे। आप लोग ये वीडियो बार बार देखिए ताकि ये चैप्टर आपको क्लियर हो सके। इसके बुक पोर्शन और क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको भेज दूंगी सेपरेटली। यू हैव टू कंप्लीट इट इन योर नोटबुक। टिल देन, बाय।